Good morning, students. I am Rakesh, and today I am going to discuss with you topic life. Student, life is complex organization of molecules which express itself through chemical reactions and metabolic reactions and causes growth, development, consciousness, variation, all the life processes. स्टूडेंट छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जब आपस में रिएक्ट करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स और एटम्स रिएक्ट करके एक बायोमोलिक्यूल बनाते हैं और फिर फर्दर वो बायोमोलिक्यूल्स एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, देन लाइफ का क्रिएशन स्टार्ट होता है। स्टूडेंट, लाइफ को एक्सप्लेन करने के लिए वेरियस साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज प्रपोज की है। फर्स्ट वी विल डिस्कस थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल creation. Student, this theory is explained by Father Shores. Father Shores. He proposed that life was created by supernatural power, that is God. Supernatural power, that is God. According to Indian mythology, Manu and Shraddha are first human, but Christian mythology, Christian mythology, Adam Adam and Eve are first human. Student, this is the theory of special creation proposed by Father Shores. Now let us discuss another theory, which is theory of spontaneous generation. Spontaneous generation. Student, the name says itself spontaneous, that is life created spontaneously from non-living matter. Matter from non-living matter. Students, supporters of this theory are Alexander, Plato and Aristotle. इस थ्योरी ने ये कहा कि लाइफ जो है वो स्पॉन्टेनियसली क्रिएट हुई, अचानक से आ गई और नॉन लिविंग मैटर से क्रिएट हुई। स्टूडेंट, नेक्स्ट थ्योरी अबाउट लाइफ इज थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। Student, this theory explains that life creates from pre-existing life. ऑलरेडी जो लाइफ प्री एग्जिस्टिंग थी उससे जो नई लाइफ है वो क्रिएट हुई। स्टूडेंट, इस थ्योरी में साइंटिस्ट स्प्लेंजानी इन्होंने वर्क किया। दे टेक a test tube inside which he placed a small piece of meat, and another test tube inside which he placed a small piece of meat also. One of the test tube is completely sealed or closed. Okay students, then he observed that in the opened test tube bacterial infection and nuggets are observed. Nuggets and bacteria are observed. He explained that the flies are roaming in the open beaker or test tube, which will results
into the infection and creation of new life. But while the another test tube which is closed, no life creates in this test tube. जो टेस्ट ट्यूब बंद थी, जिसके अंदर कोई इन्फेक्शन क्रिएट होने के चांसेस नहीं थे, फ्लाइज ने कोई स्पोर्स इन्फेक्ट नहीं किए, उस टेस्ट ट्यूब में लाइफ क्रिएट नहीं हुई। ये एक्सपेरिमेंट स्प्लेंजानी का था। स्टूडेंट, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय पाश्चर। Pasteur take a flask in which broth is present. He heated the flask. Then in one flask he opens the lid, and in another flask he closed or sealed the flask. Both flasks are heated one. He observed that in open flask bacterial and fungal infection occur. This will clearly proposed that life only arises due to pre-existing life. कहीं से एयर से उड़ के स्पोर्स आएंगे, फ्लाई स्पोर्स लेके आएगी, किसी मीन्स से जब तक कोई प्री एग्जिस्टिंग लाइफ वहाँ नहीं पहुँचेगी तब तक न्यू लाइफ का क्रिएशन नहीं होगा। स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट थ्योरी अबाउट लाइफ इज थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया, पैंसपर्मिक थ्योरी, interplanetary theory. Student, this theory states that life comes in earth from another planet in the form of spores, seeds and sperms. स्पोर, सीड और स्पर्म की फॉर्म में दूसरे प्लेनेट से हमारे प्लेनेट में लाइफ जो है वो ट्रांसमिट हुई है, ऑटोमेटिकली बायोजेनेसिस से क्रिएट नहीं हुई या स्पॉन्टेनियसली क्रिएट नहीं हुई। तो ये पैंसपर्मिक थ्योरी जो है एक्सप्लेन्स करती है। नेक्स्ट थ्योरी अबाउट लाइफ इज स्टूडेंट, दैट इज फिफ्थ थ्योरी एंड विच इज मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, ओपेरिन एंड हेल्डेन थ्योरी। Student, Oparin and Haldane theory also known as modern theory, and in modern theory we will discuss about two things. One is chemical evolution and other is biological evolution. Student, in chemical evolution free atom से inorganic molecules की formation होगी, then उससे organic molecules की formation होगी, then यहाँ से बायोलॉजिकल एवोल्यूशन विल स्टार्ट्स टेक पार्ट एंड कोएसर्वेटिव्स फॉर्म, देन प्रोटोबायंट्स एंड प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स आर फॉर्म्ड और इवॉल्व्ड। स्टूडेंट, ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले हमें प्रिमिटिव अर्थ के एटमॉस्फेयर को जानना होगा। व्हाट वाज द एटमॉस्फेयर ऑफ प्रिमिटिव अर्थ? फर्स्ट थिंग, इन प्रिमिटिव अर्थ एनवायरनमेंट इज रिड्यूसिंग। स्टूडेंट, व्हाट एनवायरनमेंट इज रिड्यूसिंग मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, बट प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऑल दिस थ्री आर प्रेजेंट बट ऑक्सीजन इज एब्सेंट। एंड द सेकेंड थिंग इज lightning is present. Third thing is clouds with heavy rain. Fourth thing, student, at the primitive earth is high temperature. स्टूडेंट, ये चार फैक्टर्स हमारे प्रिमिटिव अर्थ में थे। रिड्यूसिंग वहाँ का एनवायरनमेंट था, लाइटनिंग जो थंडर्स प्रोड्यूस होते हैं, देन क्लाउड्स, रेनिंग बहुत ज़्यादा थी, देन हाई टेम्परेचर। ये चार चीज़ प्रिमिटिव अर्थ में होने की वजह से
जो सिंपल एटम थे, सिंपल एटम, सिंपल एटम क्या क्या थे हमारे पास स्टूडेंट? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, लाइक दिस सिंपल एटम, इन्होंने इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए और ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे वैम गैसेस। क्या थे स्टूडेंट? वैम गैसेस। W इज फॉर वाटर, H इज फॉर हाइड्रोजन, A इज फॉर अमोनिया, अमोनिया, एंड M इज फॉर मीथेन, M इज फॉर मीथेन। स्टूडेंट ये हमारा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था जो सिंपल एटम से बना। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक सिंपल मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई। तो वो हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हमारे शुगर, शुगर में स्टूडेंट मोनोसैकेराइड्स दैट इज ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एक्सेट्रा। देन स्टूडेंट्स ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। देन स्टूडेंट न्यूक्लिक एसिड का सिंपलेस्ट मोनोमर फॉर्म दैट इज प्यूरिन एंड पायरिमिडीन, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। स्टूडेंट ऐसे सिंपल मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हुई वैम गैसेस से। देन स्टूडेंट इन सिंपल यूनिट्स ने आपस में कंबाइन करके पॉलीमर्स की फॉर्मेशन की, पॉलीमर्स बनाए। ये जो पॉलीमर्स थे हमारे पॉलीसैकेराइड्स थे, पॉलीसैकेराइड्स। देन फैट्स जो ग्लिसरॉल के पॉलीमर से बना। देन प्यूरिन पिरिमिडीन के पॉलीमर से हमारे पास न्यूक्लिक एसिड बना, न्यूक्लिक एसिड। अब स्टूडेंट ये जितने भी पॉलीमर थे इन सब पॉलीमर्स ने आपस में कंबाइन करके क्या बनाया? कोएसरवेट्स, कोएसरवेटिव्स, कोएसरवेटिव। स्टूडेंट नाउ वी डिस्कस व्हाट इज कोएसरवेटिव। कोएसरवेटिव क्या था? कोएसरवेटिव इज अ माइक्रोस्फीयर, छोटा सा स्फीयर था whose wall is made up of lipid and polysaccharide inside which some water is also present। इस तरीके से ग्लोब्यूल की फॉर्मेशन, जैसे कि स्टूडेंट आपने 10th में पढ़ा होगा, क्लास 10 में मिसल फॉर्मेशन, लाइक दिस। ये कोएसरवेटिव्स बना था और ये पहला सिंपलेस्ट फॉर्म था, बट लाइफ लिविंग नहीं था ये। देन स्टूडेंट जो एक्चुअल में जहाँ से लाइफ का क्रिएशन स्टार्ट हुआ वो था प्रोटोबायंट, जो बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर था कोएसरवेटिव्स से, बट द डिफरेंस इज दैट इनसाइड विच जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट, डीएनए उसके अंदर प्रेजेंट था। डीएनए, इट इज द एडिशनल थिंग विच इज प्रेजेंट इन प्रोटोबायंट। then from protobiont evolution of prokaryotic cell and then eukaryotic cell evolved। स्टूडेंट इस लाइक दिस जो लाइफ थी वो इवॉल्व हुई। नाउ वी हैव टू डिस्कस व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लाइफ एंड डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। स्टूडेंट लाइफ को डिफाइन करने के लिए हम वेरियस फीचर्स को एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट वी हैव सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी सेल, हर सेल में होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूंगा दो इंपॉर्टेंट पॉइंट की सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दो पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग इज द आउटर मेम्ब्रेन, द आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन का प्रेजेंट होना। देन स्टूडेंट सेकेंड थिंग इज इनसाइड विच प्रोटोप्लाज्म लाइक सब्सटेंस इज प्रेजेंट, प्रोटोप्लाज्म लाइक सब्सटेंस इज प्रेजेंट। स्टूडेंट ये दो चीज़ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन बनाती है और ये दोनों चीज़ सारे सेल्स में प्रेजेंट होती है, वेदर दे आर प्रोकारियोट और वेदर दे आर यूकारियोट। स्टूडेंट बट देयर इज फ्यू एक्सेप्शंस विच आर वायरस, वायरोसॉइड्स, प्रायोन्स, वायरॉइड्स। स्टूडेंट्स ये वो एग्जाम्पल हैं जहाँ पर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एब्सेंट है, सो दे आर डजन नॉट कंसिडर्ड अंडर लिविंग, लाइफलेस
ऑर्गेनिज्म, इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी क्लासिफिकेशन में प्लेस नहीं हमने प्रोवाइड कर रखा। रीज़न यही है कि इनके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एब्सेंट है। स्टूडेंट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग वी हैव टू डिस्कस beyond cellular organization is energy. Student, if we talk about energy, then ATP is the energy currency of cell. When these ATP break down into ADP, adenosine diphosphate plus pi phosphate, then energy is released, and this energy is utilized by cell to produce various work done. जो एनर्जी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में से एक फॉस्फेट के बॉन्ड को तोड़ने के बाद निकलती है, रिलीज होती है, उस एनर्जी से हम क्या करते हैं, हमारा सेल डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है, और यही बेसिस है सारे सेल्स का। दैट इज व्हाई एनर्जी इज आल्सो अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट इज मेटाबॉलिज्म। स्टूडेंट, यू कैन नो metabolism, that metabolism is sum total of all biological reactions। स्टूडेंट, जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो रही है वो सब मेटाबॉलिज्म कहलाती है। मेटाबॉलिज्म इज ऑफ टू टाइप, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म दो टाइप का है। In case of anabolism, it is constructive process, it is destructive process। Student, constructive process means simplest molecules आपस में react करेंगे और construct करेंगे एक big molecule, but in case of destructive process, bigger molecule जो होगा वो destruct होगा, वो टूटेगा, टूट के smaller molecules बनाएगा। राइट स्टूडेंट? सो इन केस ऑफ एनाबॉलिज्म, एनर्जी स्टोर्ड होगी जब एक बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा, कंस्ट्रक्शन होगी, और इन केस ऑफ जब डिस्ट्रक्शन होगा, मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी इज रिलीज्ड। ओके स्टूडेंट, इसका स्टूडेंट एग्जांपल है जब एनर्जी स्टोर्ड होती है और कंस्ट्रक्शन होती है। एग्जांपल इज 6H2O प्लस 6CO2 give rise to, in the presence of light, give rise to C6H12O6 plus 6CO2। Student, this is 6O2। Photosynthesis is anabolic process, photosynthesis। And student, in case of catabolism, respiration, which is reverse of photosynthesis का जस्ट उल्टा, जहाँ पे ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी ग्लूकोज के साथ एंड देन उसको बर्न आउट करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन एंड वाटर को रिलीज करेगी। दिस इज द रिवर्सल ऑफ फोटोसिंथेसिस इज रेस्पिरेशन एंड इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। स्टूडेंट, मेटाबॉलिज्म भी हमारा लाइफ प्रोसेस है, क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट होता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है, बोथ एनाबॉलिक एज वेल एज कैटाबॉलिक। स्टूडेंट, हम नेक्स्ट प्रोसेस जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज होम्योस्टैसिस। व्हाट इज होम्योस्टैसिस? इन केस ऑफ होम्योस्टैसिस स्टूडेंट, if you will compare our internal environment with external environment, then student, you can notice that in few organisms internal environment keep on changing with change in external environment। जैसे जैसे internal environment change करेगा, external environment भी change होता रहेगा। These organisms are conformers, but student, in case of some other animals, the internal environment keep on constant while the external environment keep on changing. These animals are regulators। Student, human is also a regulator।
हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट जो है ह्यूमन का वो कांस्टेंट है 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट, अगर हम डिस्कस करते हैं रेगुलेटर्स को और कॉन्फर्मर्स को स्टूडेंट, देन रेगुलेटर्स टेम्परेचर एज वेल एज पीएच दोनों को रेगुलेट करते हैं। इन केस ऑफ टेम्परेचर, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करता है, हाउ आर बॉडी विल होम्योस्टेसाइज, किस तरीके से होम्योस्टेसिस करेगी इंटरनल टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आउटर टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर इंक्रीजेज, एट दैट टाइम in case of some animals body start sweating, sweating also known as perspiration, body perspiration करेगी। and student, in case of some animals animal start panting करेगा एनिमल। स्टूडेंट, इफ टेम्परेचर गोज डाउन, अगर टेम्परेचर हमारा डिक्रीज कर गया, देन स्टूडेंट व्हाट विल हैपन, आवर बॉडी स्टार्ट शिवरिंग and some animals start huddling। स्वेटिंग और पर्सपिरेशन में हमारी बॉडी से स्वेट बाहर निकलेगा, जो आपको पता है एक ऐसा फिनोमेना है जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है कि डाउन कूल करने में हेल्प करता है। वाइल पैंटिंग में जो कुछ एनिमल्स हैं जो अपनी टंग को बाहर निकाल के हीट को रिलीज करने की कोशिश करते हैं। देन स्टूडेंट, आफ्टर होम्योस्टेसिस we will discuss another topic, which is growth। Student, you will know that growth is of two type, intrinsic or internal growth and extrinsic or external growth। And growth is in term of cell number and cell size also। if we will define the growth, then growth is irreversible increase in mass of living organism। इरिवर्सिबल इंक्रीज ऑफ मास मीन्स बॉडी जो है वो इंक्रीज कर जाए मास में और इरिवर्सिबल इंक्रीज हो, वापस से रिसेशन ना हो, डेप्रिसिएशन ना हो। सो स्टूडेंट, ग्रोथ हम इसे कहते हैं, बट ग्रोथ को क्या हम एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ले सकते हैं, और हम किस लाइफ प्रोसेस को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ले सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, हम ये डिस्कस करेंगे। अभी तक अप टिल मैंने कितने लाइफ प्रोसेसेस आपके साथ डिस्कस कर लिए, ग्रोथ, टेम्परेचर एंड स्टूडेंट, ग्रोथ, टेम्परेचर, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टूडेंट होम्योस्टेसिस स्टूडेंट, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म ऑल्सो स्टूडेंट। ग्रोथ जो है, इफ वी टॉक अबाउट सम माउंटेन्स, देन अ प्रोसेस विच इज नोन एज एक्रीशिएशन, दैट इज छोटे छोटे पेबल्स, रॉक, सैंड आपस में कलेक्ट होते होते एक बड़ा माउंटेन फॉर्म कर देते हैं। That process is known as accretion। As we know that mountain is a non-living thing, but it can grow। Here you can see धीरे धीरे उसने ग्रो किया। So growth is not a defining character। हम ये नहीं कह सकते कि growth is only and only restricted in living thing, while cellular organization is a defining property of living। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ लिविंग में ही प्रेजेंट होगी, हमने आगे डिस्कस किया है, प्रोटोप्लाज्म और मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर। होम्योस्टेसिस, जिसमें
बॉडी आउटर एनवायरनमेंट से अडेप्ट करेगी। हमने देखा कन्फर्मर्स में एब्सेंट है, कन्फर्मर्स में होम्योस्टैसिस नहीं है, तो होम्योस्टैसिस इज ऑल्सो नॉट अ defining character. Student, in case of metabolism is defining character because the metabolic reactions are present in every living organism. Student, in this lecture I will completed, and another lecture I will come up with new topics and कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आऊँगा। स्टूडेंट, मेरे चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो। गुड बाय।